यस मैम। मैम मेरा Yes, 21 को है, पहले। 21 को। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप भी डेली ज्वाइन करिए आप, ठीक है। चलिए। कहाँ से हैं आप? मैम रामपुर। जी। रामपुर। रामपुर। यस मैम। अच्छा, रामपुर के विषय में कोई खासियत? मैम यस, रामपुर इज फेमस फॉर मेनी नंबर ऑफ थिंग्स, but particularly there has been a rule of earlier there has been a rule of Rajput there, but it has been freed by Nawab Fazil Khan in 1774, wherein the Rampur city was established. It is famous for Jama Masjid, which is main attraction for tourism and business. It is famous for one of the architects like Raza Library, which has 12,000 about 12,000 manuscripts, and it is home to a variety of culture. Rampuri Chaku, that is very famous there, which is of very 4.5 inches long, I think. अच्छा ठीक है। लॉ आपने कब किया और कहाँ से कंप्लीट किया है? Ma'am, I have completed law in 2022 from Aligarh Muslim University. सॉरी, एविडेंस पढ़ा है? Yes, ma'am. अच्छा, इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट्स के बारे में सुना है? Yes, ma'am. क्या होते हैं इनकल्पेटरी स्टेटमेंट्स? Ma'am, inculpatory statements are those statements which have the tendency to incriminate you, that can go against you, that prove your liability. Exculpatory statements are a kind of statements which give you a certain kind of defense. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मारा तो आपने किसी इंटॉक्सिकेशन के अंदर मारा, तो वो चीज आपकी एक्सकल्पेटरी पार्ट हो जाएगी। अच्छा, आपने इसमें कोई केस पढ़ा है जिसमें, अच्छा ये बताइए इनकी एडमिसिबिलिटी के बारे में क्या कोर्ट की राय है? इन्हीं स्टार्टिंग से लेकर अभी एट प्रेजेंट क्या है बताइए, इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी की एडमिसिबिलिटी को लेकर। Yes, ma'am. It was held in the case of the leading case of Palvinder Kaur versus State of Punjab. And the court cannot rely only on the inculpatory statement to convict accused. It has also to take into account the exculpatory statement. And there was also this Nishikant Jha versus State of Bihar. In this case, it was held that the statements inculpated parts, and if it is in writing and they cannot be struck, they cannot be separated, then the entire statement should be struck out from the evidence. आपने And उल्टा there पूछा was है। also one case. Hmm, maybe I am confusing between Agnu Nagesha and Nishikant Jha. नहीं नहीं, देखिए Hmm. परमिंदर कौर के जजमेंट में था आइदर, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आइदर टू एडमिट द इनकल्पेटरी और एडमिट द एक्सकल्पेटरी पार्ट और रिजेक्ट द You have to इनकल्पेटरी admit it पार्ट। as a whole. यस, आपने उल्टा बोला। ऑन द अदर हैंड निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा है इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू एक्सेप्ट एज ए होल, कोर्ट में आइदर This एडमिट case. द इनकल्पेटरी पार्ट और ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। Hmm. ओके, Okay. ठीक है। चलिए, Confused between. कोई बात नहीं। ये बताइए अगर दो या तीन कॉन्ट्राडिक्टरी कन्फेशंस हैं, एक जुडिशियल कन्फेशन है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, एक्स्ट्रा जुडिशियल में कुछ और बोला है, जुडिशियल में कुछ और बोला है, किस पर रिलाई करेंगे? And judicial confession. वाई? Ma'am, because in judicial confession there is a less possibility of any tutoring or concoction. कहाँ लिखा है So ऐसा? that is कहीं लिखा हुआ भी ऐसा एविडेंस में? likha hua. I'm not sure about that, but judicial confession are having a higher evidentiary value than the बात तो ठीक extrajudicial है, one. लेकिन हमारे आपके कहने से ही नहीं है ना, लिखा हुआ भी है। सेक्शन 80 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ओके, देयर इज Section. प्रिजम्पशन रिगार्डिंग द Okay, जुडिशियल कन्फेशन। ओके, okay, I'll चलिए। read. हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा बताइए डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? Ma'am, डिस्कवरी I'm not having the स्टेटमेंट्स। exact idea, but discovery statements under section 27 of the Indian Evidence Act, wherein if the confession leads to a discovery of the fact regarding the place of the object or the
the commission of the crime. So that will be relevant. That is an exception to the rule, wherein it is held that confession made to a police is not relevant. But if it leads to the discovery of the fact, then it will be relevant. अच्छा अच्छा, मान लीजिए किसी ने बताया कि मैंने मारकर बॉडी को रोड पर फेंक दिया एक किनारे पर, और बॉडी वहां से रिकवर भी हो जाती है हाईवे किनारे से, साइड में हाईवे पे रोड किनारे बॉडी पड़ी है, उसने बताया, और बॉडी वहां से रिकवर हो जाती है, क्या ये डिस्कवरी स्टेटमेंट होगा? Discovery of the fact, as far as I can think, it will not be, because डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट जो पहले पता ना हो वो चीज, इसमें प्लेस ऑफ हाइडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें पता चले और फिर वो एग्जैक्टली वहां से मिल जाए, तो तो तब बताया वो ना, रेलेवेंट होगा। अक्यूज ने बताया कि मैंने मारा, और मारने के बाद हाईवे पर साइड में डाल दिया है, और वहां पर जाती है पुलिस अक्यूज को लेकर, और वहां से रिकवरी हो भी जाती है। अब बताइए मैम आई एम नॉट श्योर, पता नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हो रही है। क्या आप कंफ्यूजन हो रहा बता है? दीजिए। डिस्क्लो, उसने बोला कि हाँ बॉडी वहां पड़ी है, और बॉडी वहां से डिस्कवर भी हो जाती हो है, जाएगा हो जाएगा ना हो डिस्कवरी? जाएगा। यस नहीं मैम, होगा? हो जाएगा। नहीं होगा नहीं होगा। मैम, रीजन आपने आपने जब डिस्कवरी स्टेटमेंट पढ़ा होंगे, तो आपने देखा होगा प्लेस ऑफ जो बताया है, जहां से डिस्कवरी हुई प्लेस, ऑब्जेक्ट की, दैट प्लेस मस्ट बी सीक्रेट प्लेस, हाइडिंग होना, मतलब वहां पे छुपी सीक्रेट हुई हो, ऐसा नहीं है कॉमन, क्योंकि यहाँ तो प्लेस ऑफ हाइडिंग, समझ गई होंगी आप, आई थिंक। बोल भी रही हूँ और तभी, जी मैम, बोला भी है प्लेस ऑफ हाइडिंग तब भी। हाँ, तो ये अगर कोई आपको बार बार इंटरव्यू बोर्ड आपको कहे, तो ये बात मान ही नहीं लीजिएगा उनकी। नहीं आता है तो बोल दीजिएगा सॉरी सर, आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि वो आपसे गलत आंसर भी निकलवाना चाहेंगे, कि देखेंगे आपको कॉन्फिडेंस कितना है, कि जो हम कह रहे हैं वही मान ले रही हैं आप। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी? In police custody, the person is in the custody, the physical custody of the police in the police station. But in the judicial custody, he is not in the police station, he is in the jail under the supervision or the custody of the judicial magistrate. ठीक है, ये बताइए कितने दिन की पुलिस रिमांड पर कोई अक्यूज रह सकता है? Ma'am, maximum as per section 167, he can remain in maximum 15 days in police custody. एंड जुडिशियल कस्टडी कितने दिन? Ma'am, judicial custody, there are certain periods which are prescribed in the proviso. मैक्सिमम If the offense मैक्सिमम is मैक्सिमम ड्यूरिंग maximum, ma'am, इन्वेस्टिगेशन, 60 days or 90 days. तो मैक्सिमम 90 डेज ना? 90 days, yes. ओके, Maximum 90 days. व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग? Plea bargain is a kind of settlement between the accused and the prosecution, wherein the accused admits his offense and the prosecution ready to drop some charges against him or award him some certain punishment which is acceptable to the defense also. गड़बड़ बोल दिया आपने, रेडी टू, के क्या बीच बोला में आपने? रिड्यूस सम चार्जेस मैम, अगेंस्ट? charges, some charges against नो him नो नो, or नेवर नेवर, ये कभी नहीं होता है इंडिया में। चार्ज रिड्यूस नहीं होते हैं प्ली बार्गेनिंग में, चार्ज रिमेन सेम एज अर्लियर, बट सेंटेंस जो है वो रिड्यूस होता है, दैट इज सेंटेंस बार्गेनिंग एंड नॉट द चार्ज बार्गेनिंग। ओके, प्ली बार्गेनिंग में केवल कब पूरा प्रोविजन देखिए, आफ्टर द सेटलमेंट क्या होता है, सेंटेंस कम होता है, ना कि चार्ज, चार्ज रिमेन सेम। ओके, हेलो।